Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the food webs. What food webs are? Look dear students, actually what's happening in the nature, like in our previous class we discussed about the food chains, but what is actually in the nature? Food chains never operate as isolated but are interconnected, forming an interlocking pattern. See what we discussed in the previous class. For example, food chain क्या होता है? Process of eating and being eaten. For example, this is a green vegetation. यहाँ पे है कोई corn plant है, इसको grasshopper खा रहा है, इसको यहाँ से frog खाएगा, ठीक है, and this frog को directly एक eagle या hawk यहाँ पे इसको खा रहा है. और so this is the one food chain. और this is another food chain. यहाँ से grass है, ये grasshopper ने खाया, इसको rat खाएगा, इसको यहाँ पे snake खाएगा, ठीक है, and the top carnivore. So this is the another food chain. So this is the food chain. The process of eating and being eaten is known as food chain. But क्या हमने बोला था that food chains has got the linear arrangement. तो ये linear है. These food chains are actually the linear. But what happens in nature actually? ये जो food chains है, though there is a linear arrangement, but actually these are not isolated. ठीक है, linear arrangement is there, but ये जो एक दूसरे से जो different food chains है, they are not isolated. Actually the linear arrangement of the food chains hardly occur in the nature. Basically जो linearly arranged food chains है, ये separate नहीं है. These linearly arranged food chains are interconnected at the different levels. So what? For example, ये जो हमने देखा यहाँ पे grass को खाएगा frog and directly the eagle, but the chances there, ये जो grass है इसको grasshopper ने खाया, what happens? इस frog को directly यहाँ पे snake भी खा सकता है. Is it so? So यहाँ पे क्या हो गया? There is the connection between the different trophic levels बन रहा है यहाँ पे इस food chain में. It is not strictly कि नहीं जी जो frog है इसको आकर eagle ही यहाँ से खाएगा, नहीं, frog को chances है पहले snake खाएगा, फिर इस जो food chain से इस snake को दब जाकर क्या खाएगा? This very eagle. So what is happening in the nature actually? These food chains never operate isolated but are interconnected at forming this, ये जो network सा बनाते हैं, this complicated web बनाते हैं, these different food chains in the nature, and this linear arrangement is hardly existing in nature. So what food web is? Food web is simply the network of the food chains. तो हमने क्या देखा? Though there are these linearly arranged food chains, मगर ये क्या है? These are actually interconnected at different levels, forming a food web. तो फूड चेन से क्या बनाते हैं? डिफरेंट फूड चेन्स एट डिफरेंट लेवल्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो बना रहे हैं एक नेटवर्क सा बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? दैट फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन्स विच बिकम इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स सो एज टू फॉर्म ए नंबर ऑफ द फीडिंग कनेक्शंस this among the different organisms of a biotic community. So what is the aim actually? There are a number of these different types of food chains are there, number of food chains are there, but what is happening in the nature? This linear arrangement hardly existed actually. जो क्या है वो एक very this complex interlocking pattern बना रहा है, एक web pattern बना रहे हैं. These और food chains linearly नहीं है. It is not like नहीं ये बहुत strictly follow हो रहा है, grass को frog ही खाएगा, frog को ये this eagle ही खाएगा. No, the chances हाँ grass को grasshopper ने खाया, यहाँ से एक rat ने खाया, यहाँ से इस chain के frog को क्या खाया, यहाँ से दूसरे food chain के the snake ने खाया. So that means in nature actually what has happened? They are not linearly separately existing these food chains. These are interconnected at various traffic level, at various this trophic level. So what we call that the food web. What is the importance? क्यों है ये? Why they are interconnected? What is the significance? The first and the foremost जो significance है जो food webs की है, that is it imparts stability to the ecosystem. See how? As food webs now provide simply the alternate source of the food to different species, thus imparting the stability to the ecosystem. For example, this is a one example here. ठीक है, एक हम लेंगे. This is a food web क्योंकि ये आप connected है, दो food chains है. This is connected here. For example, grass को क्या खा रहा है? Rabbit खाएगा. हमने एक simple सा example here to make this clear. This for example, this is a grass here. What is happening? इसको rabbit खाएगा. Rabbit को कौन खा रहा है? Hog खा रहा है, top carnivore. और यहाँ से क्या है? दूसरा फूड चेन है, इस ग्रास को माउस भी खा रहा है, या यहाँ इस माउस को कौन खाएगा? डायरेक्टली हॉग. दिस इज अनदर फूड चेन. और ग्रास को माउस खाएगा, माउस को स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खा रहा है? दिस इज द हॉग हियर. नाउ व्हाट वी सेड, दिस imparts a significance. What is the significance? The first is that imparts a stability to the ecosystem. See how? By providing alternate source of the food. For example, in case of extinction of the rabbit, अगर ये रैबिट यहाँ पे खत्म हो जाए, व्हाट विल हैपन द हॉग पॉपुलेशन? अगर लीनियर अरेंजमेंट होता, ये इंटरकनेक्शन नहीं होते, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? ठीक है,
सो व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे, यानी सिर्फ अगर लीनियर होते, नेचर में ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते, फूड वेब्स नहीं होते, तो ग्रास को रैबिट खा, रैबिट ने हॉक खाया, तो व्हाट हैपन्स, जो रैबिट है एक्सटिंक्ट हो गए, इनकी कंप्लीट डेथ्स हो गई, कंप्लीटली आउट नंबर एलिमिनेट हो गए फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो व्हाट विल हैपन, सर्टनली जो आपका हॉक है वो उसकी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, क्योंकि उसका जो फूड चेन था वो ये फॉलो कर रहा था, ये लीनियर अरेंजमेंट फॉलो हो रहा था। सो जब रैबिट खत्म हो गई तो सर्टनली दिस विल इम्पैक्ट द हॉक पॉपुलेशन एज वेल। तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो बट व्हाट इज नेचर, एक्चुअली हमने क्या, बट फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड कर रहा है, दीज फूड वेब्स, ये हॉक आकर खाएगा इस माउस को डायरेक्टली, ठीक है। सो दैट मीन्स रैबिट अगर एलिमिनेट भी हो गया तब भी ज़्यादा पूरा कोलैप्स, इफ दो एवरी स्पीशीज इंपॉर्टेंट, मगर हॉक जो यहाँ पे है, दिस इज एट द फोकस दिस टाइम, इसने किसको खाया, माउस को खाया, दो स्पीशीज, तो यहाँ से भी ये रन सिस्टम हो गया, ये साइकिल चला यहाँ से, क्योंकि व्हेन देयर इज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ द फूड, ग्रास को माउस ने खाया, माउस डायरेक्टली फूड किसको मिला, हॉक को मिला। सो स्टिल जो पॉपुलेशन है हॉक की सर्वाइव हुई, ओवरऑल there is not a complete collapse of the system. So by providing the alternate source of the food, जो food webs है, they impart the stability to the ecosystem. And the next is the food webs help in maintaining the ecological balance. कैसे जो food webs है, they impart the stability to the ecosystems, कैसे, by controlling the population size, by regulating the population size. See how, for example, consider this very example. See क्या होता है, जो predator है, क्योंकि यहाँ जो food chains है, they are connected at the different trophic levels, उस वजह से क्या है, जो predators है वो population को control करते हैं, तो ओवरऑल वहाँ पे important क्या होता है, ecological balance. See how, for example, क्योंकि देखो जो इकोसिस्टम है, हर एक इकोसिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी है, हर एक एनवायरनमेंट को एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट कि इनफिनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे रैबिट्स या माउस है वो सर्वाइव करेंगे इन दिस वेरी एनवायरनमेंट, नो। जो ये एनवायरनमेंट कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, वहाँ एक रेंज है, मैक्सिमम लिमिट है, कितने नंबर ऑफ रैबिट्स को ये सपोर्ट करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा, कितने माउस को ये सपोर्ट कर सकता है, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रैबिट या जो भी स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास से फीड कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम उनको कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज को सपोर्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इनकी नीड्स जो है, रैबिट भी घास को खा रहा है, ये माउस भी घास को खा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो दोनों स्पीशीज दे आर डिपेंडेंट फ्रॉम दिस फूड एस्पेक्ट, किस पे है, ऑन दिस वेरी ग्रास, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या एक नेचर ने लिमिट रखा है कैरिंग कैपेसिटी, उस कैरिंग कैपेसिटी की वजह से एक कंपटीशन आता है, ये कोशिश करेगा मेरी पॉपुलेशन स्प्रेड हो, मैं ही सर्वाइव करूँ, एंड सर्टनली एंड देयर इज ऑलवेज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कौन सा है, उस वजह से सर्टनली इवन अमंग वी ह्यूमन देयर इज ऑलवेज द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। उससे क्या हो जाता है, देयर इज द कॉम्पिटिशन, ठीक है, हर एक स्ट्राइव कर रहा है, थ्राइव कर रहा है फॉर द सोर्स फूड है, ठीक है, डिफरेंट लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द लाइफ, ठीक है। तो सो देयर इज ऑलवेज ए कॉम्पिटिशन। सेम हियर, जो रैबिट्स है ये भी करेगा, ये भी ज़्यादा, ये भी है, ये भी कोशिश करेगा, आई विल गेट मोर दिस फूड, ठीक है, मेरे सारे ये जो स्पीशीज नंबर है वो भी किस पे डिपेंडेंट है, ऑन दिस वेरी ग्रास हियर, द वेजिटेशन। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी स्टेज फाइनली, जो इनकी है जो कंपटीशन है, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि जो सोर्स ऑफ फूड है ये भी इसके लिए कॉम्पीट कर रहा है, ये भी इसके लिए कॉम्पीट कर रहा है, और नेचर ने जो बार रखा है, किसका लिमिट रखा है, कैरिंग कैपेसिटी का। सो देयर विल बी स्पेश अल्टीमेटली जो मोर कॉम्पिटेटिव वन वुड eliminate the less competitive one. For example, in case of the examinations है, 2 seats है, you are going for the post graduate courses है, certainly क्या हो जाता है, there are only the 2 seats are there, what happens here, obviously जो ज़्यादा competitive, जो ज़्यादा पढ़ रहा है, जो struggle कर रहा है, ये ज़्यादा जो efficient है, it's not like जो efficiently जो studies कर रहा है, just more inefficient in his or her study, certainly जो less competent होगा, जो less efficient होगा, तो that will be eliminated, ठीक है, from this competition, तो वो survive हो गया, वो आगे grow and progress होगा। So same here, what happens, because of this very carrying capacity, जो populations है, for example, we will consider rabbits are more कॉम्पिटेंट हेयर, इनका नंबर बढ़ गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली ज़्यादा स्प्रेड जो हो जाएंगे, क्योंकि हमने कंसिडर किया जो रैबिट ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट हेयर फॉर एग्जांपल मींस ये जो अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स भी आ रही है, ये एबल है अडेप्ट करने में,
इट इज़ कॉम्पिटेंट कंपेयर टू, विल कंसिडर हियर मोर कॉम्पिटेंट देन द माउस। तो उस कॉम्पिटेंट जो इसमें ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट है तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो एनवायरमेंटल अगर कोई एडवर्स कंडीशन है उसमें भी एबल है, सर्वाइव करेगा, और वहाँ कोई डिजीज काजिंग एजेंट्स है, पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, तो उनके अगेंस्ट इसका जो भी इम्यून है उसको ये फाइट कर रहा है। जो माउस है कंपेयर टू द रैबिट इट इज़ लेस कॉम्पिटेंट। व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ द लिमिट जो टीचर हैज़ कैप्ट इन दिस जो ये कैरिंग कैपेसिटी लिमिट रखा गया है, सो व्हाट विल हैपन, जो कॉम्पिटेंट है ऑलवेज वो जो लेस कॉम्पिटेंट है उसको एलिमिनेट करेगा, बाहर निकालेगा। तो यहाँ कौन सा करे, क्योंकि इसको भी यही क्रॉस चाहिए, इसको भी सेम स्पेस चाहिए, तो यहाँ फाइनली ये स्पीशीज क्योंकि ये कॉम्पिटेंट था ये भी लड़ रहा था इस चीज़ के लिए भी, जगह के लिए, मगर यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए भी लड़ रहा था, मगर ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं था, ये ज़्यादा फाइट नहीं कर पाए डिजीज एजेंट्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली द रैबिट विंस हेयर, तो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसने पूरा ये स्पेस जो भी फूड है जितनी इसकी कैरिंग कैपेसिटी है रैबिट पॉपुलेशन ने कवर कर ली, ठीक है, दिस इज एलिमिनेटेड। बट एट द सेम टाइम एवरी स्पीशीज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, तो हमने एक स्पीशीज को लूज किया, बट दिस इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली, दिस वुड हैपन इफ ये जो टॉप प्रीडेटर है पॉपुलेशन जो कंट्रोल कर रेगुलेट कर रहा है नहीं होता। सो व्हाट हैपन्स देयर, जो पॉपुलेशन है ये क्या करता है, ये सिर्फ रैबिट को नहीं खा रहा है, इसी को नहीं खत्म कर, ये माउस को नहीं खत्म कर रहा है। सो एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज दिस फीडिंग कनेक्शंस है, यहाँ पे फूड वेब इज देयर, फूड चेन तो नहीं अलग से एग्जिस्ट होता है इन नेचर, देयर इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब। तो व्हाट इज हैपनिंग, जो हॉक है ये कभी रैबिट को भी पॉपुलेशन को खाता है, ये माउस को भी खाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इसके जो इसके ये प्रे बन रहे हैं इस प्रीडेटर के, ड्यू टू दिस वेरी इससे पॉपुलेशन रेगुलेट होता है, और जो आपका है व्हाट हैपन्स यूजुअली जो रैबिट और माउस पॉपुलेशंस दैट विल स्टे बिलो द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, बिटवीन बाय कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन बिलो द कैरिंग, व्हेन इट इज ऑलरेडी बिलो द, ये भी बिलो कैरिंग कैपेसिटी, बिलो कैरिंग कितने रैबिट्स को कर सकता है सपोर्ट, कितने माउस को सपोर्ट कर सकता है ऑलरेडी, क्योंकि साथ साथ क्या है यहाँ प्रीडेटर्स को कंज्यूम कर रहे, तो सो इट इज़ बिलो द कैरिंग कैपेसिटी, सो जो है लेस चांसेस देयर, जो मोर कॉम्पिटेंट है वो लेस कॉम्पिटेंट को एलिमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसको भी खा रहा है इसको भी खा रहा है, तो कोई किसी को आउट नंबर नहीं कर रहा है, देयर इज एन प्रॉपर बैलेंस, देयर इज द कंट्रोल, देयर इज एन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय रेगुलेटिंग द पॉपुलेशन साइज, क्योंकि ये बढ़ रहा है मगर एट द सेम टाइम इसको ये कम कर रहा है, जब ये कम हो रहा है तो ये भी इसको आउट नंबर नहीं करेगा। सो या अब इधर ये इसको अब ये बढ़ रहा था, ये कॉम्पिटेंट ज़्यादा था, ठीक है, ये इसको एलिमिनेट करता नहीं, मगर ऊपर से इसको ये जो हॉक है ये इसको भी खा रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, तो जो ये फीडिंग जो दिस आर, सो व्हाट हैपन्स, अगर ये देयर लीनियर अरेंजमेंट नहीं होता तो स्ट्रिक्ट फॉलो होता है, नहीं जी ये बिल्कुल रूल फॉलो है, ग्रॉस रैबिट को अगर हाकी खाएगा नहीं जी बस दिस इज सेपरेट, इसको कोई लेन देन नहीं है विद दिस वेरी अनदर फूड चेन, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लेटर ये इस इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ द जो जिस डिपेंडेंसी है जिस फूड पे वो सेम था, ये इसको खत्म कर लेता, मगर ये इसी को नहीं खाएगा, मगर देयर से फीडिंग इसको चांस है दिस विल हैपन, इसको भी एलिमिनेट, इसको भी कंज्यूम करेगा, इसको भी खाएगा। सो ओवरऑल दिस वे व्हेन देयर आर दिस इंटरकनेक्शंस, फीडिंग इंटरकनेक्शंस आर देयर, एक चेन से दूसरे स्पीशीज जिनका नीड सेम है उसको जो प्रीडेटर है वो इसको भी कंज्यूम करके इसको भी कंज्यूम करके इनका नंबर है बिलो कैरिंग कैपेसिटी से कंट्रोल रखता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेरी फूड वेब्स, obviously nature ने ये सब रखा है, this is the very this beautiful in fact importance, the very this significance of the food webs that imparts an ecological balance, कैसे, by regulating the population size. So this इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द टॉप डाउन कंट्रोल, इसको बोलते हैं कौन सा अप्रोच, दिस एंड दिस कंट्रोल जो ये अप्रोच है इस अप्रोच को क्या बोलते हैं, दिस इज द टॉप डाउन कंट्रोल अप्रोच। क्या वहाँ क्या होता है, वेयर द predator regulates the prey size, यानी यहाँ जो what is the top down, one will be the bottom up, ठीक है, you need to remember here bottom up means कितना ग्रास होगा उतना रैबिट में एनर्जी ट्रांसफर होगा उतनी इनकी पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस होगी, तो कैसे बॉटम किसने किया, ग्रास से स्टार्ट हो गया एंड कहाँ तक हो रहा है, तो ये नीचे से जब है ग्रास कितनी एनर्जी ट्रैप करेगा, कितनी फोटोसिंथेसिस करेगा, कितना बायोमास बनेगा, एंड लेटर जो उसकी नेक्स्ट कंज्यूमर लेवल्स है वो इससे इम्पैक्ट हो जाएगी, दैट विल बी द बॉटम अप अप्रोच। बट हियर यू नीड टू रिमेंबर जो हमने इकोलॉजिकल बैलेंस जैसे इम्पैक्ट होता है इसमें कौन सा अप्रोच ही अप्लाई हो रहा है, दिस इज द टॉप डाउन कंट्रोल, क्योंकि टॉप से ही नीचे वाली पॉपुलेशंस क्या है जो प्रे पॉपुलेशंस है वो कंट्रोल हो रही है, क्योंकि ये हॉक आकर रैबिट को कंज्यूम कर रहा है, इनके नंबर कंट्रोल में रह रहे हैं, तो ज़्यादा भी नहीं हो रहे, तो ज़्यादा इस वेजिटेशन को भी ख़त्म नहीं करेंगे। सो दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉप प्रीडेटर्स व्हिच इज नोन एज द टॉप डाउन कंट्रोल। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड वेब।